हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। इन स्टूडेंट आज आप इत्थे एवरीडे साइंस के लिए अपनी चैप्टर करते हैं स्टूडेंट, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, एंड इट्स अ पार्ट 5। ऑलरेडी मेरे 4 पार्ट जा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अज आप पार्ट 5 करते हैं। आई थिंक अज आप कंप्लीट ही कर देंगे अपनी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो कल आप बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कीतियां सीगियां, जो भी न्यूज़ दे जो भी न्यूज़ के अंदर रहिंदियां ने ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਥੋੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਲੇਰੀਆ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਐਨਏ ਬੇਸਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਨੀਪਾ ਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਪਾ ਵਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਬਰਡਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਥੋਜਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਨੀਪਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਵਾਇਰਸ। ਜ਼ੂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਨੀਮਲ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ तो रिलेटेड है वर्ड। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू द ह्यूमन। देखो इतने कितना अच्छे तरीके नाल क्लीयर कट लिखा हुआ है कि जो अपना नीपा वायरस है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, देख रहे हो तुम इतने, देखो नैक्सट देखो, द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज नीपा वायरस, ਜਿਹੜਾ ऑर्गेनिज्म है ਜਿਹੜਾ नीपा वायरस है, ठीक है, वो की है एनसेफलाइटिस, इज अ RNA बेस्ड, ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ RNA ਬੇਸਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪਾਇਰਾਨੋਕਸੀ ਵਾਇਰਿਡੋਏ। ਜੀਨਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਹਿਨੀਪਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਹਿੰਡਰਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਟ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਪਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ दैट इज रिलेटेड टू हिंड्रा वायरस, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਨੀਚੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿੰਡਰਾ ਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, यूपीएससी ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ PCS ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, यूपीएससी ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ PCS ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। फॉर एग्जाम्पल वो डायरैक्टली तुहाडे तो नहीं पूछेगा कि हाँ जी मंकी वायरस दसो कित्थों की है, वो पूछेगा तुहाडे तो कि मंकी वायरस जिहड़ा है उसके अगे वो फैमिली पूछेगा कि हाँ जी ये जिहड़ा वायरस है किस फैमिली तो बिलोंग करता है। ठीक है, DNA बेस्ड वायरस है कि नहीं है, वो तुहानूं डिजीज़ बारे कुछ नहीं पूछ रहा, वो तुहानूं वायरस बारे पूछ रहे है। ठीक है, या फिर वो वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन पुट करेगा कि हैगी है या नहीं गी, अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो कितनी हैगी है, ठीक है, वो इफेक्टिव क्यों नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन पुट करेगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ। ठीक है, तो करंट अफेयर जो भी स्टूडेंट तुसीं पढ़ते होंगे हो उसनूं उपर उपरों ना पढ़िया करो, थोड़ा डेप्थ च भी जाया करो। ठीक है, तो फिर उस ते क्वेश्चन पुट करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिंड्रा वायरस बारे थोड़ा जिहा मैं लिख रखा, इट इज़ अ रेयर इमर्जिंग जूनोसिस डिजीज, बहुत ही रेयर हैगी, दैट कॉजेज सीवियर एंड ऑफन फेटल डिजीज इन बोथ इन्फेक्टेड हॉर्सेस एंड ह्यूमन। बहुत ही फेटल डिजीज है स्टूडेंट एक तरीके की है, ठीक है, कई बार फेटल भी हो जाती है, बट देखा जाए तो रेयर है, बहुत ही रेयर इमर्जिंग जूनोसिस डिजीज हैगी है, बट तुसीं देखो कि अज ये किन्ने हाई लैवल ते ही इंपैक्ट कर रही हैगी ह्यूमन पॉपूलेशन, है ना। रीजन उसके पिछे यही है स्टूडेंट कि आप जिहड़ा है वो डायरैक्ट कंटैक्ट च आने हैं आप, ठीक है, उदों ही ये फैलता है, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, हुण तुसीं ट्रांसमिशन देखो, इत्थे फिर तो एक तुहानूं बहुत ही शॉकिंग पॉइंट मिलेगा कि देखो किस तरीके नाल फैल रही है। देखो, द डिजीज स्प्रेड थ्रू द फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सिस, ठीक है, फ्रूट बैट, बैट पता नहीं की होंगे है ना, ठीक है, बैट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਫ ਦਾ ਜੀਨਸ टेरोपस हु आर नेचुरल रिजर्वॉयर्स होस्ट ऑफ नीपा एंड हिंड्रा वायरस, ठीक है। जो फ्रूट बैट्स ने स्टूडेंट, जो फ्रूट बैट्स ने स्टूडेंट वो की ने नैचुरली की ने इत्थे देखो, इत्थे नैचुरली रिजर्वॉयर ने बई उन्होंने अंदर बहुत सारा वायरस रह रहा है, उन्होंने फ्रूट बैट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, बट जदों द वायरस इज प्रेजेंट इन बैट यूरिन एंड पोटेंशियली फैट वीसीज एंड सलाइवा एंड बर्थिंग फ्लूइड्स, ठीक है। तो हुंदा की है स्टूडेंट, जिहड़ा ये फ्रूट बैट है जदों ये की करदा है अपनी वैजीटेबल्स के उपर फ्रूट्स के उपर जो बैठेगा उन्होंने खाएगा, या मान लो जो अपना जो भी आप फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उसनों की करेगा वो उसके उपर अटैक करेगा, ठीक है, या फिर उसनों मान लो कंज्यूम कर लिया, उसके उपर वो बैठ गया, ठीक है, तो उसके सरफेस के उपर की करेगा नीपा वायरस नूं छड्ड देगा। फिर जो फ्रूट आप कंज्यूम करांगे या मान लो फ्रूट वैजीटेबल जो भी आप कंज्यूम करांगे तो वायरस अपने अंदर भी चला जाएगा, ठीक है, ओके। क्यों हो रहा है, देखो वैसे तो बैट जिहड़ा है बैट जो बैट्स होंगे वो मोस्टली कित्थे रहिंदे है, फॉरेस्ट के अंदर या कोई भी कोई खंडर वगैरह है ना जिसनों आप यूज़ नहीं कर रहे, जो ह्यूमन पॉपूलेशन तो दूर है थोड़ा, जिथे रह रहे उत्थे नहीं गा वो, ठीक है, उन्होंने अंदर वो रहिंदे, बट तुसीं देखो कि वो जिहड़ा है वो आ रहे है जिथे अपनी वैजीटेबल्स ग्रो हो रही ने, है ना, अपनी लैंड के उपर आ रहे हैं, वो रीजन की है क्योंकि आप डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हम, जी वाइल्ड लाइफ ने, है ना, वाइल्ड लाइफ है जो भी अपनी, ठीक है, चाहे फिर वो एनीमल्स ने, इंसैक्ट ने, कोई बैट है, कोई बर्ड है, वो मैमल्स ने, कितने जाएंगे वो, है ना, कितने करने वो सिटी के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे, या फिर की है मान लो आप मीट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा करती, अलग अलग टाइप्स के आप एनीमल्स नूं बर्ड्स नूं आप मार के खा रहे हैं, तो ओबवियसली जो भी उन्होंने अंदर बैक्टीरिया है वायरस है वो भी तो अपने अंदर आएगा ही ना, राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, सिम्टम्स देखो, देखिए द ह्यूमन इन्फेक्शन प्रेजेंट एज द एनसेफलाइटिस सिंड्रोम मार्क्ड बाय फीवर, सब तो पहले तुहानूं फीवर होएगा, हेडेक होएगा, ड्राउजीनेस होएगी, डिसओरिएंटेशन होएगी, समझ नहीं आएगा, एक्चुअली मैंटल कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ईवन कोमा च भी जा सकता बंदा, तो पोटेंशियली बंदे की डैथ भी हो सकती है थ्रू दिस नीपा वायरस, ठीक है, समझ आई, यस और नो, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट आप प्रिवेंशन, देयर इज नो वैक्सीन, नीपा वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, आप देखिए इसी एमपॉक्स की वैक्सीन है बट वो बहुत ही लिमिटेड इफेक्टेड हैगी, इफेक्टिव नहीं है वो इतनी ज़्यादा ना, करंटली देयर इज नो वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, इंटेंसिव सपोर्टिव केयर इज गिवन टू ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय द नीपा वायरस, अगर नीपा वायरस किसी को हो जाए इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करनी पैंती है, मैडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए तुहाड़ियां, ठीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग नूं इन्फेक्ट किया है उसनों बहुत अच्छे तरीके नाल मैडिकल केयर की नीड होती है, इंटेंसिव मैडिकल केयर की उसनों नीड होंगी है, ताई तुसीं उस परसन को सेव कर सकते हो, अदरवाइज इट कैन बी फिटर, ठीक है, क्लियर है, यस और नो, ठीक है जी। नैक्सट आप देखते स्टूडेंट जीका वायरस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार न्यूज़ रहिंदा है जीका वायरस, देखो इट इज ऑल्सो ए मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज, ठीक है, मॉस्कीटो बॉर्न फ्लेवी वायरस दैट प्राइमरली स्प्रेड बाय द एडिस मॉस्कीटो, तुसीं दसो एडिस एजिप्टी जिहड़ा हैगा एगैप्टी जिहड़ा मॉस्कीटो एक होर किहड़ी डिजीज फैलांदा है, किहड़ी फैलांदा है, मलेरिया,
ठीक है। इट ऑल्सो कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मदर टू फीटस, ईवन ये मदर टू फीटस भी ट्रांसफर हो सकती है। मदर टू फीटस मतलब कि जो अपना अनबॉर्न बेबी है ना, जो हजे जिसका जन्म नहीं होएगा, ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਈਵਨ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਈਵਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਟੂ ਅਨਦਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। क्लियर है, यस और नो? ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो जीका वायरस की है मॉस्किटो कॉजिंग वायरल डिजीज है स्टूडेंट, ठीक है जी। ट्रांसमिट हो सकता है मदर टू फीटस, ईवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ईवन सैक्सुअली कॉन्टैक्ट नाल भी की हो सकता है फैल सकता है। नैक्सट देखो सिम्पटम की है, ज़्यादातर सिम्पटम्स यदि आते नहीं गए, ठीक है, बट जो आएंगे फिर क्या होएगा, फीवर हो सकता है, जॉइंट पेन, मसल पेन, हैडेक हो सकता है जो कि 2 तो 7 दिनों तक कंटिन्यू रहता है। कई बार ये सिम्पटम्स नहीं भी आते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। इन्फेक्शन ड्यूरिंग, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीका वायरस। एक्चुअली ये सिम्पटम्स देखे गए, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, उस तो बाद ये न्यूज़ च आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉम्प्लिकेशन की है, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मान लो किसी प्रेगनेंट लेडी नू इन्फेक्ट हो जाए, ठीक है, उसनों इन्फेक्शन हो जाए किसका, जीका वायरस का, ठीक है, तो देखा गया कि उसनों कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशनस हैगियां, किसनों जो भी बच्चा पैदा होया गया तो उसनों देखा गया कि माइक्रोसिफेलिसी ते अदर एसोसिएटेड कंडीशंस उहदे नाल देखिया गया। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਸਿਫੈਲੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮਾਈਕਰੋਸਿਫੈਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਹੈਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਜੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ठीक है। उदों ही न्यूज़ आई स्टूडेंट जो बहुत सारी लेडीज़ ने, प्रैगनेंट लेडीज़ की जो डिलीवरी हुई उस तो बाद देखा गया कि जोड़ा बच्चे के सिर का साइज सीगा, ठीक है, जो भी न्यू बॉर्न बेबी के हैड का जो साइज सीगा वो यूजुअल नालों नॉर्मल नालों ज़्यादा सीगा, मतलब कि नॉर्मल साइज नहीं सीगा। ते होर भी बहुत सारियां उहदे अंदर जेनेटिकल कंडीशन सीगियां, मतलब कि बर्थ बाय बर्थ ही उहदे अंदर होर भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो रीजन उहदे पिछे जो देखा गया दैट इज जीका वायरस, क्योंकि कदे ना कदे मदर नूं जीका वायरस का इन्फेक्शन होया जिहदी वजह नाल जिहड़ा अनबॉर्न बेबी सी उहदे अंदर भी वो ट्रांसफर हो गया एंड आफ्टर दैट एक माइक्रोसिफेलिसी वर्गी कंडीशन इत्थे डेवलप हो जाती, ठीक है। तो एक तरीके का की है बर्थ डिफेक्ट है स्टूडेंट, जिहदे अंदर बेबीज जिहड़े हैगे जो उन्होंने बर्थ होया तो उन्होंने हैड जिहड़ा सीगा वो स्मॉलर सीगा, सॉरी स्मॉलर देन यूजुअल हैड, ठीक है। साइज का जिहड़ा उन्होंने हैड का साइज सी वो छोटा सीगा, ठीक है, नॉर्मल नालों बड़ा नहीं, स्मॉलर, ठीक है, सॉरी दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है। एंड अंडर डेवलप्ड ब्रेन, ईवन जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होंगी है, ठीक है, मदर के अंदर ही वो डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके नाल नहीं हो पाई, इस करके वो अंडर डेवलपमेंट, उस अंडर डेवलप्ड बेबीज ने इत्थे बर्थ लिया, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द नीपा वायरस। हुण ट्रीटमेंट ते प्रिवेंशन की हो सकती है स्टूडेंट, इत्थे नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है स्टूडेंट, इत्थे सिम्पटोमैटिक रिलीफ ते मैडिकल केयर दसी जाती हैगी है अगर केस ज़्यादा वर्स हो जाए तो नीपा सॉरी जीका वायरस की भी कोई भी वैक्सीन हजे तक अवेलेबल नहीं है जीका वायरस लिए, देयर इज नो वैक्सीन फॉर द जीका वायरस, नीपा वायरस लिए भी नहीं गई तो जीका वायरस लिए भी नहीं गई, कोई भी इत्थे वैक्सीन अवेलेबल नहीं गई, ठीक है। तो आप इस डिजीज़ को खत्म किवें कर सकते हैं, प्रिवेंशन फोकस्ड ऑन मॉस्कीटो बाइट प्रोटेक्शन, ठीक है, मॉस्कीटोज के नाल तो बचना है आप, एलिमिनेटिंग देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, पब्लिक हैल्थ इनिशिएटिव टू कंट्रोल द मॉस्कीटो पॉपुलेशन, ठीक है। मॉस्कीटो की पॉपुलेशन को थोड़ा इत्थे की करना स्टूडेंट, कंट्रोल करना है, ठीक है। सो बस यही है सब तो बड़ा इत्थे प्रिवेंशन, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है नहीं गी, ठीक है, खास इन्ना कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाई वैक्सीन डेवलपमेंट च, क्योंकि स्टूडेंट वायरल रिलेटेड जो डिजीज़ ने स्टूडेंट, ठीक है, जो वायरल रिलेटेड डिजीज़ ने ना स्टूडेंट उन्होंने लिए वैक्सीन डेवलप करना थोड़ा जा ट्रिकी टास्क है,
कि वायरस जिहड़ा हैगा ना स्टूडेंट वो बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाता है, वो अपना स्ट्रक्चर बहुत जल्दी चेंज कर लेंदा है। सो दैट्स वाई दिस इज द बिगेस्ट रीजन या मैं कहां कि कंसर्न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। ठीक है, कोविड-19 च तां यही होया ना, कोविड-19 के टाइम च इन्नी ज़्यादा डेथ किवें हो गई है ना, क्योंकि वैक्सीन डेवलप होने च बहुत टाइम लग गया। ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप होने च की हो गया, बहुत ही टाइम लग गया। ठीक है, क्लीयर है स्टूडेंट इत्थे तुहानूं? ठीक है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन जिहड़ा हैगा, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल, सिम्पटोमैटिक रिलीफ एंड मैडिकल केयर एडवाइज्ड फॉर द वर्सनिंग कंडीशन। क्लीयर है स्टूडेंट इत्थे तुहानूं? यस और नो? ठीक है, नैक्सट आप डिजीज पढ़ते हैं स्टूडेंट, दैट इज अवर जैपनीज एनसेफेलाइटिस। नैक्सट जी डिजीज है दैट इज जैपनीज एनसेफेलाइटिस। जैपनीज एनसेफेलाइटिस जिसनों आप JE भी बोलते, ये भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, दैट कैन कॉज इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन। सब तो ज़्यादा जी इसका सिम्पटम है वो की है, सब तो ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाता है वो की है कि थोड़े ब्रेन के अंदर स्वैलिंग हो जाती, की हो जाती स्टूडेंट, ब्रेन के अंदर स्वैलिंग हो जाती। इट इज कॉज्ड बाय द फ्लैवीवायरस। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू द सेम जीनस एज अ डेंगू, येलो फीवर एंड वेस्ट नाइल वायरस। ये सेम ही कंडीशन है जिवें अपना डेंगू का वायरस होता है, इवें दी फैमिली तो ये बिलोंग करता है ये वाला वायरस की स्पीसी भी। ठीक है, दैट इज जैपनीज एनसेफेलाइटिस डिजीज कॉज करता है, तो मेन जिहड़ा ये नुकसान करता है वो करता अपनी ब्रेन नूं, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है अपने ब्रेन के अंदर। ठीक है, स्वैलिंग हो जाती है दिमाग के अंदर तुहाडे। ठीक है, ओके नैक्सट देखो, जैपनीज एनसेफेलाइटिस जिहड़ा हैगा वो मेजर कॉज हैगा एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम दा इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ये एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम कॉज करता है। ट्रांसमिशन किवें हुंदा है वो तो पता ही है, इन्फेक्टेड जिहड़ा मॉस्कीटो हैगा उसकी बाइट की वजह नाल ही की हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है जी, दीज मॉस्कीटोज ब्रीड मेनली इन राइस फील्ड। ज़्यादातर ये जिहड़े मॉस्कीटोज ने वो कित्थे ब्रीड करते हैं, राइस फील्ड के अंदर। राइस फील्ड के अंदर ज़्यादातर ये की करते हैं, ब्रीड करते हैं। एंड यू नो दैट कि राइस फील्ड के अंदर जिथे आप राइस उगाने हैं वो अंदर हमेशा ही पानी खड़ा रखना पैंदा आपां नूं। पानी के यूज आप बहुत ज़्यादा करते हैं, इस करके वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है किसका, मॉस्कीटोज। ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता। एंड लार्ज वाटर बॉडीज रिच इन एक्वेटिक वैजीटेबल्स। ठीक है, जिथे तुसीं देखिया होना कि कई बार की होंदा है कोई लेक हैगी उहदे अंदर आपां ऑर्गेनिक मैटर पाना शुरू कर देने हैं। ठीक है, आस पास का गंदा पानी उहदे अंदर आना शुरू हो जाता, बहुत ज़्यादा वैजीटेबल ग्रो कर देंगे उहदे अंदर। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हार्बर बन जाता उत्थे मॉस्कीटोज की ब्रीडिंग। मॉस्कीटोज उत्थे ग्रो करना शुरू कर देंगे ने बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट की है, देर इज नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट दैट इज इन्फेक्टेड बाय जैपनीज एनसेफेलाइटिस। की है सपोर्टिव रिलीफ सिम्पटम्स हो गए, स्टेबलाइज द पेशेंट। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट मैडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी पैंदी है, दैट्स इट। ठीक है, होर कोई एज सच कोई इहदा पर्टिकुलर डिजीज का कोई है नहीं। ठीक है, नैक्सट की है सेफ एंड इफेक्टिव अपनी जैपनीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल हैगियां स्टूडेंट फॉर दिस डिजीज। प्लीज रिमेंबर जैपनीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल है अपने को। वैक्सीनेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू नो दैट कि अगर तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है दैट इज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन 2.0। ठीक है, 2.0 भी हम लॉन्च करता, आई थिंक 3.0 भी लॉन्च हो चुके हैं, जिहदे अंदर की है वाइड रेंज ऑफ वैक्सीनेशन जी हैगी वो अवेलेबल करवाई जा रही हैगी फॉर द चिल्ड्रनस एंड प्रैगनेंट लेडीज। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जिन्हें भी अपने प्राइमरी हैल्थ केयर सैक्टर है, ठीक है, उन्होंने अंदर ही वैक्सीन अवेलेबल करवाई जा रही हैगी। ठीक है, काफ़ी वाइड स्पैक्ट्रम के उपर ये वैक्सीन अवेलेबल करवाई जाती हैं फॉर द डिफरेंट डिजीज, चाहे फिर वायरल डिजीज ने, बैक्टीरियल डिजीज ने, है ना। ठीक है जी, ओके। नैक्सट जो आप डिजीज देखते हैं दैट इज आवर HIV। यू नो दैट इट इज़ अ पेंडेमिक, हजे भी ये दुनिया पेंडेमिक बनया होया है। ठीक है जी, HIV देखो जी, HIV स्टैंड्स फॉर द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV
स्टैंड करता है किहदे लई, इस फुल फॉर्म किया गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, विच इज़ ए वायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, जो अटैक करती है ह्यूमन बॉडी के उपर। ठीक है, इट प्राइमरली टारगेट्स एंड डैमेज CD4 इम्यून सैल किहड़ियां होंदियां अपनियां टी सैल्स, टी हैल्पर सैल्स नूं ये टारगेट करते हैं। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस टी सैल्स ਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੀ ਹੈਲਪਰ ਸੈਲ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀ ਸੈਲਸ ਦੀ, ਬੀ ਸੈਲ ਨੂੰ ਬੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो टी हैल्पर सैल ही खत्म हो गई अपनी, है ना, तो बी सैल एंटीबॉडी नहीं बना पाऊगी, इतने एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो अपना इम्यून सिस्टम की होंदा जाएगा, धीरे धीरे वीक होंदा जाएगा। मैं शायद पहला भी क्लास यही चीज़ डिस्कस की हैगी है कि कदे भी ह्यूमन बीइंग की डेथ HIV वायरस नाल नहीं होंदी। HIV वायरस कदे भी ह्यूमन बीइंग की डेथ नहीं होने देता। ठीक है, मेन जिहड़ा डेथ के पिछे जिहड़ा रीजन हुंदा है वो हुंदा कि ह्यूमन बीइंग का जिहड़ा इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे की हो जाता है, ग्रैजुअली बहुत वीक हो जाता है, जिहदी वजह नाल एक सिंपल जिहड़ी डिजीज़ है वो भी ईवन फेटल हो सकती है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, अदरवाइज कदे भी किसी परसन की एड्स के नाल कदे भी किसी की डेथ नहीं होंदी गी HIV की वजह नाल। ठीक है, HIV एक वायरस है। ठीक है, एड्स की वजह नाल कदे भी ह्यूमन बीइंग की डेथ नहीं होंदी गी। डेथ होने के पिछे रीजन होंदा है कि उसका जिहड़ा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। एंड यू नो दैट कि HIV ਲਈ हजे तक कोई भी वैक्सीन जिहड़ी हैगी वो बनी नहीं। रीजन इसके पिछे तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा वायरस है ना, जो एक बार वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उस तो बाद की होंदा वो म्यूटेट करता रहता टाइम टू टाइम, अपने आप को चेंज करता रहता, जिहदी वजह नाल अपना इम्यून सिस्टम की हो जाता है इत्थे उस नाल लड़ नहीं पाता, फाइट नहीं कर पाता। ठीक है, तो मेनली जिहड़ा अटैक करता वो करता है ये अपनी टी सैल्स के उपर, टी हैल्पर सैल्स नूं ये खत्म करता रहता है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट इत्थे तुहानूं, यस और नो? ठीक है, ओवर द टाइम HIV जिहड़ा हैगा वो अपने इम्यून सिस्टम नूं वीक कर दिंदा है, लीविंग द बॉडी वनरेबल टू द अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन एंड कैंसरस। ट्रांसमिशन किवें हुंदा है ये तो तुहानूं पता ही है सारिआं नूं। ठीक है, इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ सर्टन बॉडी फ्लूइड। अगर किसी का बॉडी फ्लूइड तुहाडे अंदर ट्रांसफर होएगा उस तो बाद ही HIV होएगा, लाइक ब्लड, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड, ब्रैसट मिल्क, है ना। अगर ये जिहड़ा हैगा यही मेन ट्रांसमिशन का कॉज बनता हैगा बिहाइंड अवर HIV वायरस। ठीक है जी, ओके, क्लियर है, यस और नो? नैक्सट, सीवियरिटी, कितना ज़्यादा ये सीवियर हो सकता है इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर किसी बंदे नूं तुसीं ट्रीट बिल्कुल उसको मैडिकल केयर प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो ह्यूमन बीइंग का अल्टीमेटली सिस्टम जिहड़ा हैगा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द वायरस डिस्ट्रॉय ए पर्सनस ह्यूमन इम्यून सिस्टम एंड दे आर सैड टू बी इन द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वाली स्टेज ते वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, वेयर दे गेट सेवरल अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन दैट मे रिजल्ट इन डेथ। ठीक है, क्योर किए गए, ऑल्दो देयर इज नो क्योर, कोई क्योर है नहीं बच्चे, इसलिए आज तक डेवलप ही नहीं हो पाएगी। बट एंटी रेट्रोवायरल थैरेपीज नाल आपां इसनूं थोड़ा जिहड़ा हैगा उसनूं परसन की जिहड़ी लाइफ एक्सपैक्टेंसी हैगी वो बढ़ा सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी नाल। मतलब कि एंटीवायरल जिहड़ियां अपनियां मेडिसिन्स ने वो आपां कंटिन्यू अगर उसते उपर अगर आपां परसन नूं रखीए तो वो काफ़ी जिंदगी अपनी आराम नाल गुजार सकता है। ठीक है, these medicines suppress the replication of virus in within the body, allowing the number of CD4 immune cells to bounce back। ठीक है, इहदे नाल अपना इम्यून सिस्टम बनिया रहिंदा हैगा ते एक एड्स तक जिहड़ी कंडीशन वो नहीं बनदीगी, जिहदी वजह नाल जिहड़ा अपना लाइफ है, लाइफ एक्सपैक्टेंसी हैगी है वो बनी रहिंदी है इत्थे ह्यूमन बीइंग दी, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो इत्थे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ HIV। क्लियर है स्टूडेंट थोनों इत्थे, यस और नो? ठीक है, ओके, अगे ना क्वेश्चंस हैगे काफ़ी सारे, आई थिंक सो कि क्वेश्चंस आपां फेर करांगे। ठीक है, कल वाले सैशन च आपां MCQ डिस्कस करांगे, होर भी मैं MCQ इत्थे ऐड करांगी फॉर द ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर च। ठीक है स्टूडेंट, ओके जी, ठीक है जी, तो फिर इत्थे करते हैं आपां अपना सैशन ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।